Okay, Tanmay sir is also here. So we are going to start this live session. So hello aspirants, my name is Salman and on behalf of Prayas AI team, I welcome you all to this Telegram live session with Tanmay sir. Hello Tanmay sir, thank you so much for coming live with us on our Telegram and giving us as well as our aspirants the opportunity to connect with you. Thank you, Salman, and it's an honor for me also. And I would like to give as much as suggestion for the people because I think prelims is just 45 days away. So, Right, sir. So, guys, I would like to tell you that Tanmay sir has cracked UPSC CAC not just once but two times in a row. That is All India rank 346 in 2024 and All India rank 229 in 2025 and also All India rank 32 in IFS exam. A genius mind from IIT KGP is here. We are glad to have you here, sir. So, before we start this Telegram live, I would like to inform our viewers about this session, like how this session is going to be. So, this session will be of around 1 hour, where the first 15 minutes we will talk about Tanmay sir's life, their journey, how he get into the UPSC, and the strategy he used to clear the examination. Moving forward, we will open the Q&A session for 45 minutes, where our viewer can ask any questions related to UPSC. But I would request everyone to be very quick and specific about the question. You can ask whatever you want. There are no restriction about that, but it should be specific and related to UPSC. And at the end of this session, Tanmay sir will share one very specific key piece of advice to help you in your UPSC preparation and improve your chance of clearing the exam. I believe I am clear now. So let's start with today's Telegram live with Tanmay sir. Sir, I request you to address our viewers and spread the light on your UPSC journey. hello everyone. I am Tanmay. I'm from Patna, Bihar. और जहाँ रिक्वायर्ड हुआ वहाँ पे मुझसे हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एट द एंड बट आई विल ट्राई टू have this interview in English. So I graduated with chemical engineering and I was working in ONGC for quite some time. And after working for a few years, I thought of appearing for the UPSC exam, but it took me a lot of time. So I was able to clear this exam in my 5th attempt, and then everything came into place because I was able to crack this exam twice in a row and also the forest exam. So in my initial attempt, I have realized that there were few things which I could have worked on so that the attempts can be further reduced. So I would try to share some of that also. That's a brief intro. So, sir, as you cleared CAC 2024 and improved your score this time in 2025, can you tell us what's the difference between 2024 and 2025 preparation? Salman, the difference in my preparation was mainly about what areas where I was lacking in 2024 and how to improve on that aspect. For example, if in 2024 I was I secured 346 rank, but my marks in essay was just 91, so it dipped from 114 to 91. So I realized that from the last 2-3 years, UPSC is focusing quite a lot on grammar aspect, and I tried to work on that aspect, and for that aspect I took the help of AI also, the general AI, and also Prayas AI, because there is a feature. I have made a video also on that, but there is a feature that in Prayas AI you could upload your paper from essay to GS, and the site will evaluate, the site will give you feedback and tell you the additional value addition that you can do. So what I did was two things. First, the help of AI, and this I was doing because I was having the paucity of time, and it helped me. It helped me quite a lot. Second thing, what helped me was seeing toppers copy, because I realized that in 2024 attempt, despite me getting good marks in GS optional, I realized that toppers were also ahead of me because they were performing better than me. So in both the front, in rectifying the mistake and in answering the question like a topper, I worked, and I think that helped me in my favor.
So Okay, that is motivating, sir, to hear it from you. And like as you mentioned about Prayas AI, can you tell us exactly how Prayas AI mains evaluation helped you during the preparation? A little bit more detail. what I have realized is in mains test series, like you can go for many mains test series, and the problem is the mains test series usually takes a lot of time that they will check and give back to the copies. And I was, because again I was having this paucity of time that I was not I cannot give exam on a regular basis. So Prayas I mains thing helped me that I can upload my online copy at my will. The site will check within, I think, 2 to 3 minutes. It will point out what are the good things. It will point out what are the things that I can further add, like value addition thing. And I personally feel that AI is having an algorithm, so chances are more value additions can be done. But with the help of AI, my idea was to get a quicker copy checking, and especially the essay thing where grammatical mistakes can be found easily by the AI. So my essay marks were went down, and I was aware that grammatical mistakes are the major reason, because in forest also, though my scores were good, but in English paper I was having a bit less marks. So I realized that I have to work on that aspect. So Prayas AI helped me in both these aspects. And apart from that, like my idea, my journey of clearing this exam is not because of a single 3 months journey. It's because of the efforts that I have done in the past also. And that's why if anyone asks me that what is the exact strategy that you helped you in cracking this year attempt, this is not a single strategy. This is a strategy what I have developed over the years, the efforts what I have done over the years. And the AI thing helped me in quickly summarizing the aspects. So both the things help in my journey. Got it, sir. So, sir, can you guide us? Like prelims is in just another corner. So, can you guide us or let us know about your strategy, like how you used to clear prelims, GS and CSAT paper? In prelims, my idea, like I was able to crack prelims almost every time, and I was able to crack forest also. So one of the major reason was at the very onset I realized that even if you study a lot of things now, you will be able to answer 25 to 30 questions with certainty. Rest 70 to 75 questions you have to answer with intuition. So you have to realize that how to make the differentiation between the two. What I am trying to convey is there are subjects like polity and economics where you have to work hard enough so that your accuracy should be 80 to 90%. But in the remaining thing, history, science, environment, geography, these domains are some things which are very unpredictable, and you can't, like, the ROI is very less. So my idea was I was trying to do majorly two things. First, I was searching UPSC papers, not just CSE paper, but paper apart from CSE, like NDA paper, geoscientist paper, and normally UPSC CSE paper happens in May. These papers happen the UPSC conducts in January, March, or Feb month. So if UPSC is trying to bring some innovation in terms of exam pattern, you will be able to identify at the start only. So this helped me in being very calm. The prelims attempt in which I was able to clear forest was only because I was very calm and composed. I prepared very less that time, but then also I was able to score good. So this calmness will not come in a single day. It will require you to derive the confidence from these papers. Second thing was rather than in the economy and polity aspect, I tried to give test series of as many coaching as possible. So whatever the big names, Forum IS, Vision IS, whatever be the emerging names like Prayas AI, whatever be the other source. Like for example, I know that Down to Earth magazine is there, but I was not having the time to read Down to Earth magazine articles. So I used to write Down to Earth magazine quizzes. So whatever sites are having those quizzes, I went to those sites, solved the question paper, and did the reverse thing. Like for example, if my answers are wrong, I used to read that article. So what I'm trying to convey from all this is prelims is a exam of how well you have developed the
MCQ skill, intuition skill, and this is not about knowledge aspect. So this April month, the next 20 plus days, I would say the all the people who are listening to this should focus on developing that intuition, and this intuition will come by trying a lot. I think Prayas AI is also having these features like PYQ is there and other features are there. So people can opt for that also. So that is one thing. And apart from that, you asked me about CSAT. So let me be very honest. I never took help of anything for CSAT because I was having engineering background. But then also I've seen people with very good engineering background from IITs also. They are not able to clear CSAT. One of the major reason is in CSAT we have roughly 50 questions of math, 30 questions of English, and 50 questions of maths require you to be efficient in calculation. Okay, very quick calculation and good accuracy calculation. And a lot of engineers, a lot of ITians also, they do not put so much effort. So my idea was I used to solve only the PYQ, no other material apart from PYQ, and I used to clip those questions which I'm not very good of. Like, for example, comprehension, assumption questions, and I used to post all those questions in ChatGPT and other. And I used to tell to generate questions like these so that I should have a very good command over the PYQ. And I will tell the people also that CSAT is a very easy thing. It's just that people do not give much time in like giving efforts towards the PYQs. That's why they lose marks. So you do not have to do any separate course, any separate thing. Just the PYQ is the success mantra for prelims. So that's it. Thank you so much. Thank you so much, sir, for guiding our aspirants. With your permission, I would like to open the Q&A session for our viewers. Yeah, okay. Okay, sir. So the Q&A session is going to start. Whoever have a query can raise their hand. And as I can see, our first hand raise is from Radhika Singh. So Radhika, I am unmuting you. You can start asking your question. Radhika, you are unmuted. You can start the question. Radhika, आपको unmute कर दिया गया. Question पूछ सकते हैं. ओके, आई गेस शी इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, नेक्स्ट अनु आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाय अनु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, मैं और लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ. विकास यादव, विकास आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर, एम आई ऑडिबल? यस यस अनु, यू आर ऑडिबल. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि अभी जो अप्रैल के 20 दिन बचे हैं वहाँ पे हमें एमसीक्यू स्केल पे काम करना है. तो उसके लिए सर अगर अभी हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करते हैं तो दिन का एक मेजर सेगमेंट जैसे कि 4 घंटे 2 घंटे उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं, 2 घंटे उसमें जा रहा है. तो सर वो 4 घंटे जब चले जाते हैं तो लगता है कि रिवीजन नहीं हो रहा है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है. तो सर ये इस टाइम पे एक अच्छा अप्रोच होगा? देखो, मुझे क्या लगता है, बिकॉज यू हैव रफली 40 डेज, सो एंड लाइक ये बाकी लोगों के लिए भी सजेशन रहेगा, सेम क्वेश्चन कॉमन है. सो 40 डेज में लास्ट के 20 डेज ओनली पीवाईक्यू रखना, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू जस्ट वो सारी चीजें रखना जो तुमने टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसके आंसर पता है तुम्हें, तुम जस्ट स्किम थ्रू कर रहे हो वो सारे आंसर्स के थ्रू, ठीक है. जो नेक्स्ट 20 डेज है, इस 20 डेज में यू कैन ट्राई टू वर्क ऑन बोथ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, बिकॉज पॉलिटी एंड इकोनॉमी में सर्टेनिटी है. मतलब ये जो तुम्हें फील आता है ना रिवीजन करें कि टेस्ट दें, तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी में क्या है कि इफ यू विल रिवाइज गुड यू विल स्कोर गुड. एंड मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक है कि मतलब अगर जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, उतना अच्छा फील गुड भी करोगे. दिस इज नॉट समथिंग विद अदर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड ऑल के साथ. तो मेरा ये कहना है कि नंबर ऑफ टेस्ट थोड़ा कम कर दो. मतलब हर दिन एक टेस्ट या हर 2 दिन में एक टेस्ट दे रहे हो, मोर देन इनफ हो जाता है. एंड उसको रिवीजन एनालाइज करने पे ज्यादा ध्यान देना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट देना, ठीक है. क्योंकि मतलब द आइडिया इज पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में 80% एक्यूरेसी होना चाहिए. एंड तभी तुम्हारा ये बैलेंस फील होगा. ये जो रिवीजन एंड टेस्ट का जो होता है ना, वो बैलेंस तभी फील होता है जब तुम जो रिवाइज किए हो उससे तुम्हारा मार्क्स बढ़ता है. एंड ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट में होगा. बाकी हिस्ट्री, साइंस, इन सबको तुम वैसे टाइप से करो कि हैव 1 आवर एग्जाम, हैव 1 आवर टाइम डिवोटेड टू डू, बट उस पर ज्यादा एनालाइज मत करो. मतलब डोंट थिंक कि मेरा कितना रिवीजन हुआ है इन क्वेश्चन से, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन रैंडम होते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उठा लोगे. तो
अगेन फोकस ऐसा ही होना चाहिए कि नेक्स्ट 20 डेज जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, लास्ट 20 डेज पीवाई। ओके सर, सेकेंड थिंग मेरा क्वेश्चन ये था करंट अफेयर के लिए कि मैं मोस्टली ये विजन का PT 365 फॉलो करती हूँ। तो सर उसका ऐसा है कि मैंने अभी 2 बार पढ़ लिया है और लास्ट टाइम मैंने फरवरी में पढ़ा था, तो अभी काफी गैप हो गया है। तो अभी अगर मैं वो मैगजीन उठा रही तो लग रहा है कि सब कुछ नया नया ही है, तो वो थोड़ा सा बर्डन हो रहा है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। सर उसके लिए नहीं, इसमें बस यही मैं कहूंगा और बाकी लोगों के लिए भी कहूंगा करंट अफेयर्स का कि अगर तुमने पहले से PT 365 पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, बट जैसे कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था, पॉलिटी इकोनॉमी अच्छे से करता था, बाकी नहीं कंप्लीट कर पाता था। तो मैं क्या करता था कि इनके क्विजेस होते हैं, ठीक है, विजन के साइट पे एंड अदर कोचिंग के भी मैं क्या करता था, कोशिश यही करता था कि इनके क्विजेस सॉल्व करता था। तुम जानती होगी PT 365 क्विजेस होते हैं, फिर वो क्विजेस के थ्रू मैं रिवाइज करके फिर मैं बुक में जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उससे क्या होगा कि पूरे PT 365 के आई थिंक 3 पकड़ लो, 3 क्विजेस तो तुम दे सकती हो दिन का, तो उससे तुम्हारे 3 मटेरियल रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से तुम मंथली क्विजेस पे भी शिफ्ट हो सकते हो अगर टाइम अलाउ करता है। मेरे को कभी उतना ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करता था क्योंकि 2 PT 365 भी होते हैं, अपडेटेड PT 365 भी होते हैं। सो द आइडिया इज अगेन कि रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको क्वेश्चन बनाने हैं, अल्टीमेटली तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है, अल्टीमेटली तुम्हें इंट्यूशंस बढ़ाने हैं, तो उसी चीज पे ध्यान देना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। दिव्यांश आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिव्यांश राज। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड था टाइम मैनेजमेंट को सर। किस सब्जेक्ट को सर? ऐसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है सर, एक्चुअली हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सब चीज को लेके, तो आप अपने स्ट्रेटेजी में उस चीज को कैसे फॉलो किए? तो जैसे मैं अगर टोटल टाइम को अगर 100% मानूं तो मैं कोशिश करता था 25% पॉलिटी इकोनॉमिक्स दूंगा, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस ज्यादा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे मतलब ज्यादा होता था? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सर्टेनिटी होती है, इसमें अगर गलती होती है ना तो वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कंसेप्चुअल गैप है। बाकी में गलतियां होती है इट्स बिकॉज वो डिपेंडेंट ऑन लक है कि किस तरह का पेपर पूछा गया है। कभी ज्योग्राफी हैवी पूछा भी जा सकता है, कभी नहीं पूछा जा सकता है, बट यू आर वेरी सर्टेन कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तो रहेंगे, ठीक है। तो 25% मैं उसको दूंगा, रेस्ट हिस्ट्री को मैं 15% दे दूंगा, साइंस इन्वायरमेंट को भी 15% दूंगा क्योंकि इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, रेस्ट साइंस और जियोग्राफी 10% तो अगेन मैं ये जब स्प्लिट कर रहा हूं तो मैं आइडिया ये रख रहा हूं कि चाहे सेक्शनल दूंगा या फुल टेस्ट दूंगा, मैं टाइम इस तरह से अलॉट करूंगा कि मेरे को फील होना चाहिए कि मैंने पॉलिटी इकोनॉमिक्स थोड़े अच्छे से कवरेज किया है, एंड बाकी सब में अपने नोट्स पहले प्रायोरिटी देता हूँ, उसके बाद कोई कोचिंग फिर कुछ और। तो मेरे नोट्स खुद के थे ओवर द इयर्स जो भी बने थे। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट एन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एन, you are unmuted, you can ask the question. Thank you, sir, for giving this opportunity to interact with Tanmay sir. Yes, Tanmay sir, my question was basically right now I am giving mocks, but I am not scoring well. So I had a curiosity that what was your score before 1 month before prelims? See, I have appeared for many prelims, and I will just say that I used to solve a lot of MCQs. So normally my marks in prelims used to vary between 70 to 125, 130. 70 in the tough papers and in the easy paper, or maybe if I'm talking only about the full test papers and all. So I used to score around that. I used to give Abhyas also, so I was able to score around 100 to 110 in those 3 papers. So the basic idea is you do not have to think about the scores as such. The idea is if you are scoring below 70, that's a red flag. That you have not only the conceptual problem is there, but also the you are not able to be very calm during the exam, and that's why you are losing marks of the intuition. So that's a red flag that if you are scoring below 6, then try to be very calm, try to be very focused in exam. And if you are scoring very good, try to think about other things because 40 days is very less. So again, marks are just a reflection of how much close I am to the final prep level, but do not think much beyond that. So that would be my suggestion. Thank you.
ओके, शिवांगी यादव। शिवांगी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शिवांगी, यू आर अनम्यूटेड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शिवांगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हम ना बिगिनर है, तो सर हमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े अपने। कभी सर 2 सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं हम, कभी 3। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो सर आप बता सकते हैं। मैं ये कहूंगा ना कि तुम्हारा आई थिंक तुम्हारा वॉइस इको कर रहा है, तुम म्यूट कर सकते। हाँ ठीक है, ओके। सो सी, प्रीलिम्स इज दैट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ना जहाँ सब बिगिनर होते हैं। तुमको एक रियल बात बताता हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू क्वालिफाइड जो सेलेक्टेड लोग होते हैं वो भी प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए, देखो द आइडिया इज कि मैक्सिमम इफिशियंसी होनी चाहिए। और मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब क्या है कि तुमने सेट करके रखा है कि अगर मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स को ऐसे इतना टाइम दूंगा। जैसे मेरे हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते थे, उसका एक मेजर रीजन था कि जब मुझे मन करता था मैं पॉलिटी पढ़ता था, और पॉलिटी पढ़कर मैं थक गया हूं तो मैं हिस्ट्री पढ़ने लगता था। मतलब मेरे हिस्ट्री इन्वायरमेंट ये मेरे फिलर्स के काम करते थे, कि मतलब इन बिटवीन द 2 मेजर सब्जेक्ट मैं इसको पढ़ लेता था। द आइडिया वाज कि हिस्ट्री में बहुत रटना है, तो एट ए स्ट्रेच रटा नहीं जाता था मुझसे। तो बीच बीच में हिस्ट्री रट लिए, फिर पॉलिटी में चल गए, फिर कुछ इकोनॉमिक्स पढ़े, दिमाग लगाए, फिर थक गया दिमाग लगा के, फिर हिस्ट्री में आके फिर याद किए, फिर लिखे। सो द आइडिया इज कि तुम स्विच कर रहे हो, कहीं से गलत बात नहीं होता है, बट यू हैव टू मेंटेन द इफिशियंसी कि तुम अपने ओन नोट्स तो सबसे पहले कर लो, उसके बाद जितने टेस्ट दिए हैं उसके एक एक बार क्विकली देख लो। जो नहीं है सब कुछ देख पाओगे, लेकिन तब भी जितना हो सके देख लो। सो द आइडिया इज अगेन वही कि मिक्सअप करके पढ़ लो, चलेगा, बट मतलब तुम्हारे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये होना चाहिए। हिस्ट्री के मेरे नोट्स हो जाने चाहिए, बाकी टेस्ट के हो ना हो, ऐसा था मेरे को। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट आई एम अनम्यूटिंग विशाल सिंह। विशाल, आप अनम्यूटेड हैं। विशाल, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ हाँ, ऑडिबल हो। सर मेरे क्वेश्चन है कि सर आप जब इनिशियली पीएचडी अटेम्प्ट करते थे, बीट 2014 और 2013, तो आपके मार्क्स कितने आए थे फर्स्ट टाइम? ओके, सी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था, एंड उस टाइम भी मेरे मार्क्स, मतलब एक्चुअल यूपीएससी में मेरे मार्क्स कुछ 99 या 100 के अराउंड कुछ थे। एंड अगेन मेरा यही कहना है कि प्रीलिम्स इज दैट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, लास्ट अटेम्प्ट में हो, सेम ही मार्क्स आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि अगेन 25 to 30 क्वेश्चन तुम्हें पता होता है, रेस्ट पूरा है कि तुमने अपना इंट्यूशन कैसे। देखो, जब मैं इंट्यूशन कहता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम पेपर खोलोगे पीवाईक्यू, तो तुम्हें दिखेगा कि देयर विल बी सम स्टेटमेंट, उसके लास्ट में लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं एक किक करना चाहिए कि ये एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है, कि ये पूरी लाइन यहाँ तक सही होगी लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गलत होगा, या एज पर एक्ट लिख देगा, वो गलत होगा। क्या होता है कि जब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, किसी ने वो पूछा नहीं कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बट द आइडिया इज कि जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं इतना हड़बड़ में रहते हैं कि वी ऑफन ओवरलुक ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, और ऑब्वियस सी बात है फिर 2 मार्क्स चल जाएंगे। सो द आइडिया इज, मेरे पहले अटेम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स थे एंड उसके बाद भी अच्छे रहे। उसका ये कारण है कि ये सारी स्किल ना मैंने अटेम्प्ट करके सीख लिया था। मतलब मल्टीपल पेपर्स, पीवाईक्यू, मैं क्लोज टू 15-20 साल का पेपर बना के रखता था, खास करके हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते थे। अभी देखो, अब तुम लोग को अभी स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। 40 डेज है, 40 डेज में सब कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 20 डेज बाकी सारे रिसोर्स, लास्ट 20 डेज पीवाईक्यू। फाइन सर, अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं लाइक पीवाईक्यू, तो उसमें कभी कभी होता है ना कि इनिशियल आप जब अटेम्प्ट करते हो तो आप मार्क्स देखते हो कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे मार्क्स थोड़े पीवाईक्यू के इन टर्म्स एज एन होल फुल लेंथ में तो थोड़े कम आए थे, तो थोड़ा सा मैंने क्लिक किया कि और आर यू ऑन राइट ट्रैक और नॉट। सी, ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया है कि अगर तुम 40 डेज को कैसे बेटर यूटिलाइज करना है, अगर तुम इस पे फोकस रखोगे, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 40 मार्क्स ना अभी, यू विल बी एबल टू स्कोर 90 मार्क्स बाय द एंड। बट अगेन इट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी कंसिस्टेंट, इट रिक्वायर्स यू टू नॉट टू थिंक कि मेरा प्रोसेस रॉन्ग है, कि मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, मेरे नहीं होंगे। बिकॉज अल्टीमेटली यूपीएससी का पेपर क्वाइट डिफरेंट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर से, या जो भी अदर पेपर है पीवाईक्यू से भी, क्योंकि पीवाईक्यू भी उस ईयर उस लेवल का पूछा था। अभी हार्ड इजी कुछ भी हो सकता है। सो द आइडिया इज 40 डेज में कांस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट दो, विदाउट थिंकिंग इवन अ सिंगल मोमेंट कि तुम्हारा नहीं होगा या कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि
इफ यू आर हैविंग अ डाउट, ऐसे ही सीट्स कम है तो यू आर गोइंग टू लूज द अटेम्प्ट, तो डाउट नहीं आने का। हाँ, एकदम आसान आसान। ओके, थैंक यू सर। हाँ। विकास, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। बस सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, पूछ लो। सर मुझे मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है सर कि करंट अफेयर्स के मैं सर नोट्स बनाता हूँ सर। मैगजीन पढ़ना थोड़ा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बार फिर उसे रिवीजन नहीं कर पाते, तो मैं पर डे उसके क्रिप्स नोट बनाते चलता हूँ सर। तो सर ये रणनीति सही है फिर थोड़ा गलत है सर? नहीं, गलत है। एकदम साफ बात बोलूंगा, गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होता है क्लोज टू 75% स्टैटिक नॉलेज पे। तो अगर तुम्हारे पास Yes. स्टैटिक नॉलेज नहीं है और तुम ये पढ़ रहे हो जिसका आरओआई कुछ नहीं है, तुम्हें मालूम भी नहीं है, तुम्हारे जो भी नोट्स, एक तो पहले नोट्स बनाने में एफर्ट लग रहे हैं, रिवाइज करने का पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, फिर उसमें से पूछा जाएगा नहीं पता, सो यू आर इन्वेस्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम और उसका आरओआई नहीं पता है तुम्हारे पास क्या है। सो बेटर इज invest close to 75 to 80% time on static subject, make it जी। strong, and remaining time, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस रिमेनिंग टाइम में करंट अफेयर्स के क्विजेस दो, करंट अफेयर्स के टेस्ट दो। तुम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है और कोशिश करो फेमस वाले ही लो, ठीक है, उसके करंट अफेयर्स के टेस्ट दो और उसके करंट अफेयर्स के टेस्ट देके उनके आंसर की को देखो, याद कर लो, या आई थिंक किसी ने पूछा था जी, जी। विजन के क्विजेस के थ्रू कर लो। दीज थिंग्स विल बी अ गुड थिंग। और हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारा फॉरेस्ट एग्जाम निकलेगा, अगर लेट सपोज वहां तक जाना है, तो जी। तुमको तुम्हारा मतलब फोकस होना ही चाहिए स्टैटिक पे। मतलब 75 to 80% सिलेक्शन बस तुम्हारा स्टैटिक कराता है। जी जी सर। सर आपने प्लेटफॉर्म बता दीजिए जिस पर क्यूजिस करते थे, किस प्लेटफॉर्म? मतलब उस पे क्या करता था? क्यूजिस सर, क्यूजिस करंट अफेयर्स। अरे सी, मैं ना ओवर द टाइम चेंज करते रहा हूँ। लाइक फॉर मी टेलीग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जो हमेशा हेल्पफुल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिनका एग्जाम नहीं निकलता था और वो बहुत अच्छा चैनल खोलते थे एंड उसके थ्रू वो बहुत अच्छे क्विजेस कराते थे। बट ओवर द टाइम ये चैनल्स भी बंद होते जाते रहते हैं क्योंकि उनका अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर मी लाइक मैंने ना वैसे प्रिपेयर नहीं किया कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग पकड़ा है। मैं थ्रू आउट जॉब कर रहा था और मुझे जो फ्री रिसोर्सेस मिले, जहां से मिले, मैंने सब कुछ को यूज किया है, ठीक है। प्लस जहां पे मुझे पेड लगे, क्योंकि मैं पैसे कमा रहा था तो वो थोड़ा लग्जरी था मेंस के लिए, तो मैं उसमें खर्च किया। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई एक कहना होगा। अगर मुझे कोई एक कहना होगा, आई वुड से कि पीवाई, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो पीवाई क्यू करो, लास्ट 10 ईयर्स के पक्के और हिस्ट्री में 20 ईयर। ओके ओके सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर। करंट अफेयर्स किस डेट तक का कर लें? एग्जाम जैसे 24 मई को है, फिर तो उससे किस डेट तक कर लें? जब मैं क्योंकि सर बोल रहा पिछले हूँ कि साल मैं करंट देखा था अफेयर, मई के महीने से भी पूछे गए थे क्वेश्चन। अरे सी, तुम ना, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तुम मतलब मई का महीने के एक क्वेश्चन के कारण तुम पूरा उतना रामायण नहीं पढ़ते हो। तुम यही कह रहे हैं कि यू हैव टू सी इन अ वेरी लॉजिस्टिक मैनर कि तुमको स्टैटिक अच्छा करना है, तुमको इंट्यूशन अच्छा करना है, सो दैट इफ देयर इज समथिंग इन करंट अफेयर्स न्यूज ऑल्सो, क्वेश्चन जो उससे पूछा जाएगा वो स्टैटिक से पूछा जाएगा। उसका मतलब 3 स्टेटमेंट में एक होगा करंट अफेयर्स उसका, बाकी 2 स्टैटिक होंगे। तो ट्राई टू वर्क ऑन द स्टैटिक एस्पेक्ट। एंड करंट अफेयर्स के जितने अभी तक के नोट्स बन गए हैं, आज हो गया 6 अप्रैल, 5 अप्रैल तक का तुम्हारा जो नोट्स बन गया है, बस उसी को देखो। ना नोट्स बनाओ, ना उसमें इन्वेस्ट करो। तुम्हें लग रहा है कि कुछ पूछा जा सकता है तो जाके क्विजेस दे, ठीक है, वो डेली क्विजेस भी आते हैं बहुतों के, तो दे दो। थैंक यू सर। नेक्स्ट, वान्या एम राठौर। वान्या, आप अनम्यूटेड हैं। वान्या, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस सर, जय हिंद सर। सर आई वांटेड टू आस्क, अभी मेरा प्रीलिम्स तो नहीं है इस साल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग पूछना चाह रही थी कि आपने मेंस आंसर राइटिंग से बिगिन की एंड देन ओवर द टाइम आपने कैसे मतलब उसमें प्रोग्रेस किया। लाइक व्हाट डिड यू फील कि जो जैसे हर चीज़ में 80-20 वाला जो रूल होता है कि 80% थिंग्स डोंट वर्कआउट बट 20% थिंग्स गिव अस द मोस्ट ऑफ द रिजल्ट। तो आपके लिए वो 20% थिंग्स क्या थी जिससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत एनरिचमेंट मिला? तो मेंस के साथ देखो, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं होते हैं हर टॉपिक के। और इफ यू विल रियलाइज ना कि द पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर 2-3 मेंस आल्सो, दे डू नॉट हैव कंटेंट फॉर ऑन एवरी टॉपिक। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मेरे पास कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट कहने का मतलब सिलेबस के हर कीवर्ड्स पे आई कैन राइट एटलीस्ट 10 लाइन्स। ओके, सो मेरे पास उतना कंटेंट होना चाहिए।
ठीक है। सिलेबस के हर कीवर्ड्स, अगर इफ आई पिक GS1, तो अगर उसमें सोसाइटी है, सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन है, तो मेरे पास 10 की मतलब 10 लाइंस लिखने लायक होना चाहिए। एंड दैट मीन्स कि कोई केस स्टडी होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कोई रिसेंट न्यूज होना चाहिए, डिफिनीशन होना चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, सबसे पहला दिक्कत होता है कंटेंट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब कंटेंट हो जाता है तो उसको 7 मिनट के अंदर कैसे लिखें ये नहीं पता होता है, तो स्पीड नहीं होता है, तो वो स्पीड लाना पड़ता है। तीसरा जो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट और टाइम के साथ साथ रिक्वायर्ड है कि हम लोग स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं अपने आंसर्स का। बिकॉज इफ यू विल सी द कॉपीज ऑफ द फर्स्ट 10 टॉपर किसी भी साल का, तुम देखोगे कि उन्होंने बेस्ट आंसर लिखा है, एट क्वेश्चन के डिमांड को भी मीट किया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी लिखा है, स्ट्रक्चरिंग भी किया है, वैल्यू एडिशन भी डाला है, कोटेशन भी डाला है, एक अच्छा इंट्रो भी डाला है, कंक्लूजन भी डाला है। सो ये ना ओवरनाइट नहीं होता है, इसको रिक्वायर होता है कि एटलीस्ट 3-4 मंथ्स दो, अपने आंसर लिखो, टॉपर्स के आंसर देखो, उसके हिसाब से अपने आंसर को मॉडिफाई करो। सो मेरा बस एक ही चीज कहना होगा कि ये तीनों पैरामीटर पे काम करो, बट एट द सेम टाइम क्या करो कि टॉपर्स की कॉपीज अवेलेबल होती है बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो उनकी कॉपीज डाउनलोड करो। उनके जो क्वेश्चंस हैं, समझो उन्होंने GS1 पे कुछ आंसर लिखा है, उसको 7 मिनट में, 10 मार्कर है तो 7 मिनट, 15 है तो 11 मिनट, तो उसको 7 मिनट में लिखो, कंपेयर करो एंड देखो कि तुम्हारा कितना ऑर्डिनरी आंसर था कंपेयर टू उनका कितना अच्छा आंसर था। ऑब्वियसली बात है विद टाइम ये गैप कम हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में ये गैप रहेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें रिकॉल ही नहीं होगा, स्टार्टिंग में तुमको पॉइंट्स ही नहीं याद होंगे, बट यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तब जाके मार्क्स आएंगे, तब जाके वो होंगे। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर गुड या प्रिपेयर अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि इतनी इनर्सिया होती है ना कि उनको लगता है मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा। परफेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पहले ओके आंसर लिखना है, फिर अच्छा आंसर लिखना है, फिर जाके वेरी गुड आंसर तक पहुंचोगे। तो स्टेजेस है ये। ओके, एंड सर आपका ऑप्शनल क्या रहा था इन अटेम्प्ट? मेरा ऑप्शनल एक ही था थ्रू आउट, मैथ्स था, एंड उसमें पहले डिसेंट मार्क्स आते थे 250 260 टाइप, लेकिन अगेन अगर तुमको फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए एंड अदर चीज चाहिए तो 280 प्लस चाहिए मार्क्स, तो वो विद टाइम मेरा 280 प्लस हो गया। तो अगेन तुम्हें फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी ऑप्शनल हो तुम्हारा, तुमको 270 280 प्लस तो चाहिए हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट एन, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। एन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you, sir. Sir, my question is regarding the prelims attempting strategy, because I have heard that iteration strategy works. I have tried both, but I mostly tilt towards attempting in a single iteration. So I would like for you to shed some light here. Okay. See, the very first thing is मैं किसी का स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आई पर्सनली फील कि एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी, और वॉट एवर बी योर स्ट्रेटेजी तुमको कॉन्फिडेंट रहना होता है। बट फिर भी मैं अपना स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, एंड इसको तुम लोग नेक्स्ट 3-4 टेस्ट में लगाना एंड फिर ये करना। तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या होता था कि 2 घंटे का पेपर है, मुझे पहली बार देख के सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आना है, बट एटलीस्ट मुझे एक बार देखना तो है। तो मैं क्या करता था कि फॉर द फर्स्ट 1 आवर आई यूज टू डिवाइड स्लॉट्स ऑफ 15 ईच, ठीक है, तो 15 ईच के 4 स्लॉट्स हो गए। हर 15 मिनट्स में मैं 25 क्वेश्चन देखता था एंड अटेम्प्ट करता था। एंड व्हेन ऐसा ही देखता था एंड अटेम्प्ट करता था, तो मैं कोशिश ये करता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको देखते ही आंसर आ जाता है, तो फिर वो उसको मैं टिक कर दिया, उसको मैं एक बार वेरीफाई कर लिया। फिर मैं दूसरे क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चन होता है जिसको देखते ही पता चलता है ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसा। तो मेरा आइडिया क्या था, फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ ये स्ट्रेटेजी मैं इसलिए रखता था क्योंकि 4 सेट्स होते थे, एंड क्वेश्चन 1 to 25 किसी सेट में बहुत आसान आएगा, किसी में 1 to 25 ही बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैं मेंटली रेडी होके जाता था कि मेरे को जो सेट मिलेगा उसमें 1 to 25 बहुत हार्ड होगा, फिर भी मैं मतलब क्या कहते हैं एफर्ट अपना पुट इन करूंगा, मतलब गिव अप नहीं कर दूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि 76 to 100 क्वेश्चन बहुत आसान है, या 51 to 75 क्वेश्चन बहुत आसान। तो द आइडिया वाज कि मैं इक्वल टाइम दूं पहले, तो 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस ईच अटेम्प्ट करता था, एंड आफ्टर 1 आवर मैं OMR लेता था, और फिर मैं एक एक करके भरना स्टार्ट करता था। तो फिर मैं उसमें क्या होता था कि
1 आवर में एक इटरेशन हो चुका है, एटलीस्ट एक बार देखा हुआ है। नेक्स्ट 1 आवर में मैं जो जिसमें श्योर शॉर्ट था उसमें देख लेता था कोई वर्ड प्ले तो नहीं है, कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा है ओनली या नो वन या कुछ ऐसा एक्सट्रीम वर्ड जो कि गलती हो सकता है, नहीं है तो मैं मार्क कर देता था और एक एक करके मैं मार्क करके पेपर कंप्लीट कर लेता था नेक्स्ट 1 आवर में। और उसमें जहां जहां पे मैंने लिखा था कि ये 2 ऑप्शन में डाउट है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता था एंड मुझे जो सही लगता था बेस्ड ऑन जो भी मेरा ओवर द इयर्स ऑफ एमसीक्यू का एक्सपीरियंस हुआ था उसके साथ मैं आगे बढ़ जाता था। और फिर मैं पॉन्डर ओवर नहीं करता था क्योंकि टाइम नहीं है ना मेरे पास फिर से सोचने का, और मेरा आंसर चेंज नहीं हो सकता है जो हो गया। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजी। थैंक यू सर। DY मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। DY आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अर्पित आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्पित आप अनम्यूटेड हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हाँ DY सर, मेरा ये क्वेरी था कि मैंने जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू की है और मैंने अटेम्प्ट 28 में देना है, तो क्या स्टार्टिंग में एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए या फिर कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर दोनों को एक साथ करना चाहिए? आई वुड से देखो कोई भी कोचिंग कोई भी फाउंडेशन कोर्स तुम्हें हेल्प करता है कि तुम टाइमलाइन पे स्टिक करके रखो, बट अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, यूपीएससी ऐसा एग्जाम है ना खास करके मतलब क्या कहते हैं ये जब तुम तीनों स्टेजेस को साथ में देखते हो, दिस इज एग्जाम विच रिक्वायर्स सेल्फ स्टडी मोर कंपेयर टू एनी कोचिंग है, ठीक है। तो मेरा एकदम सिंपल सा कहना है कि इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास डिसिप्लिन उतना नहीं है, तो टेक द हेल्प ऑफ कोचिंग, क्योंकि वो तुम्हें टाइम बाउंड रखेगा, वो तुम्हें फोकस रखेगा। मेरे पास लग्जरी नहीं था कि मैं कोचिंग अफोर्ड कर पाता इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था देने के लिए, बट इफ यू आर हैविंग दीज टू, अगर मेरे पास भी वो रहता तो मैं भी करता, तो डेफिनेटली कोचिंग लो, क्योंकि फिर उससे टाइम बाउंड हो जाते हो, ठीक है। लेकिन एट द एंड हमेशा ये जानो कि बहुत लोग कोचिंग लेते हैं फिर वो पढ़ते नहीं है उतना, फिर उतना एफर्ट नहीं जा पाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितना जल्दी रियलाइज कर लो कि प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए और मेरे प्रेप में क्या कमी है, मेंस के लिए क्या चाहिए, मेरे प्रेप में क्या कमी है। सो अगर तुम दोनों चीजों को पैरेलल में बढ़ा सकते हो, बोथ एनसीईआरटी एंड तुम्हारा मतलब एनसीईआरटी आई वुड नॉट से कि जो तुम्हारे फाउंडेशनल बुक हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड ऑल, एनसीईआरटी आर समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों चाहिए, जब तुम्हें डायरेक्ट वैसे बुक उठाओ ना, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी उठाओ, इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह उठाओ, मतलब मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आई वॉज वेरी मोटिवेटेड, आई वॉज हैविंग वेरी क्या इनर्जेटिक माइंड, मैं इतना डाउटफुल नहीं होता था। तो मैं सेम स्पिरिट से सोच रहा हूँ कि तुम लोग भी इस वही स्पिरिट से करोगे, एंड उसका फायदा ये रहता है कि मतलब डिस्पाइट कि एक बार समझ में नहीं आया मैं मतलब परेशान नहीं होता था, फिर दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, तीसरी बार में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगेन तुम्हारे पास है पैसा है, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन का इशू है, ले लो कोचिंग, नहीं तो खुद से भी हो जाएगा। सर थैंक यू सर। मैं अर्पित, मैंने हिंदी ऑप्शनल स्टार्ट किया है अभी। पहले मैं ऑप्शनल वॉइस चला गया आपका। अर्पित आप क्वेश्चन टाइप करके मुझे भेज दीजिए, तब तक विकास जायसवाल, विकास मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, विकास आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ गुड इवनिंग सर, विकास आप... बोल। अच्छा जी सर, मुझे 3 टॉपिक्स पे प्रॉब्लम थी सर। एक तो हमारा हिस्ट्री में सर आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिडल में सर हमारा स्कोर कम होता है। मैं जो पहले पढ़ा था सर ये तमिलनाडु बुक यूज किया था, उसके अलावा एक एनसीईआरटी, दोनों को मिलकर मैंने नोट्स बनाया, हो नहीं रहा है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, पूनम दहिया की बुक है जो सर, उसको यूज कर लिया, फिर भी मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं। तो सर फर्स्ट थिंग ये हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कैसे डील करे, कुछ हेल्प करिए। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जिसमें रेंज बढ़ाने से पहले तुमको डेप्थ बढ़ाना पड़ जाता है, इन द सेंस कि तुम्हारे पास जितने एग्जिस्टिंग सोर्स है क्या तुम उसको अच्छे से रिवाइज किए हो, अगर नहीं किए हो तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हर साल ना लेट सपोज हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 12, 13, 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज से बन जाएंगे, या अगर कोई नया मटेरियल भी ट्राई करोगे तो शायद उससे नहीं बना पाओ, ठीक है, क्योंकि कोई नई मटेरियल से 1 या 2 क्वेश्चन बढ़ता है, सही बात बोले तो मैं क्या करता था कि देखो एनसीईआर मतलब मैंने भी तमिलनाडु की बुक्स की थी, फिर उसके अलावा मैंने थीम्स किया था, क्योंकि थीम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुम भी थीम्स वाला बुक कर सकते हो, और थीम्स पे बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब तो यार वही कहा ना कि एआई आ गया है, अब तो मेरे को और आसान हो गया है, क्योंकि मैं स्नैपशॉट डाल सकता हूँ। आई थिंक प्रयास एआई के पास भी होगा ही वो फीचर्स एंड अदर। तो उसमें क्या होता है कि तुम यूटिलाइज करो ये सारे प्लेटफॉर्म का, कि जब तुम्हारे पास वो है ऑप्शंस कि
रिवाइज एग्जिस्टिंग मटेरियल को अच्छे वे में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थीम के ना कभी कभी इमेजेस से क्वेश्चन पूछ देते हैं, गजपति लक्ष्मी वाला कुछ क्वेश्चन था, इसी तरह से हर बार कुछ एग्जिस्टिंग सोर्स के ही घुमा फिरा के पूछते हैं, नहीं तो कुछ नया ही पूछ देता है जो किसी भी सोर्स में नहीं मिलेगा। तो मेरा आइडिया हमेशा ये था कि भाई जितना नोन है उतना तो कर लो, क्योंकि एक दो नया क्वेश्चन ट्राई आउट करने के लिए कोई एक इंटायर बुक पढ़ना उतना वर्थ इट नहीं होता है। ठीक है, तो अगेन फिर से मैं वही कहूंगा कि एग्जिस्टिंग सोर्स देखो और जो एआई प्लेटफॉर्म सब है उनका यूज करो टू जनरेट मोर क्वेश्चन ऑन द जो भी टॉपिक्स है तुम्हारे पास, जो भी नोट्स है तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत बार नोट्स रिवाइज करना बनता नहीं है। तो मैं तो हमेशा फोटो खींचो, डालो, अपलोड करो एंड क्वेश्चंस जनरेट करो एंड प्रैक्टिस करो, तो जो ठीक लगे तुम्हें। ठीक है सर, एक ये हो गया सर। सेकेंड थिंग हमारा इकोनॉमिक्स में अभी मैंने बजट और जो सर्वे, सर सर्वे काफी लेंदी है तो सर उसे मैं कर नहीं पाया था, लापरवाही हुई है। बट अब इसे कैसे डील करें आप बताइए, आपने कैसे किया था और कैसे इसे करना चाहिए? देखो यार, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन सब का समरी आता है, तुम्हें भी पता है, 2-3 पेज का, 10 पेजेस का आजकल। ठीक है, तो जी। मैं कोशिश करता था ये तो पढ़ लूं पहली बात, ठीक है, एटलीस्ट ये पढ़ लूं। उसके बाद मैं फोकस पूरा रखता था, जैसा कि मैंने बाकी आंसर्स में भी दिया, कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में मेरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब, जैसे मैंने इकोनॉमी में विवेक सिंह फॉलो किया था लास्ट 2 साल, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब बुक्स भी ओके थे एंड उसके क्वेश्चंस भी ओके थे, तो ये मैं कर लेता था। और पीवाईक्यू टाइप के लिए इसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म मैं यूज कर लूंगा, ठीक है, जिसपे मेरे पास पीवाईक्यू अच्छे से सॉर्ट हो। ठीक है, आई थिंक इस वाले प्रयास एआई वाले में पे भी ईयर वाइज है। ठीक है, मेरे टाइम में तो यार हमको बहुत मेहनत करना पड़ता था, मैं एक एक करके हर कोचिंग में डाला था, आज से 2-3 साल पहले का बता रहा हूँ। अभी तो लास्ट 2 साल से मेरे को आसान हो गया था कि मतलब जितना पीवाईक्यू में कर सकता था करता था, लेकिन द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि पीवाईक्यू तो करूं ही करूं, और बाकी इकोनॉमी में या पॉलिटी में मैं गिवन सोर्सेस को अच्छे से कर लूं। जैसे विवेक सिंह को मैं उनके खुद के आई थिंक 550 450 है सर, क्या क्या 450 है सर, 450। हाँ 450 या एमसीक्यू कुछ आते हैं, तो मोर देन इनफ होता है यार वो। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड थिंग है कि हमारा मैपिंग से इंडियन मैपिंग, हाँ तो इसके लिए मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सर नॉर्मली हमने कर रखा है, लेकिन अगर कुछ आप हेल्प कर सकें कि कैसे करें तो राइट वे क्या रहेगा? यार अगेन मैं इसमें क्या करता था कि मैंने मैपिंग के लिए बहुत टाइम देता था। मैं मैपिंग पीवाईक्यू चैनल्स खोलते थे, उसमें देखते थे मैपिंग वाले कौन कौन से चीजें हैं। नहीं तो देखो एक्चुअली क्या है ना, मैपिंग लास्ट 15 साल का मैं क्वेश्चंस निकाल लेता था जहां जहां मैप का जरूरत पड़ा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा मैं क्या करता था कि जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछते थे ना, उसमें अगर लिखा हुआ है जगह की मतलब क्या कहते हैं, मतलब कोई सा भी जगह लिखा हुआ है ना, नेपाल का जगह हो, कर्नाटका का जगह हो, तुम्हारे मतलब आईवीसी वाले जितनी भी साइट्स है, ठीक है, उसके बाद इन सब का ना मैं प्लॉट करके रखता था। मतलब जस्ट बिकॉज तुम कह रहे हो ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो तुम एक सिर्फ ज्योग्राफी वाला एंगल सोचते होगे, मैं कह रहा हूँ मैं हिस्ट्री में भी मैपिंग के थ्रू रिवीजन करता था, सो डैट कल को मुझे अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री का जिसमें मेरे को लोकेशन का दिमाग लगाना पड़े तो मैं यूज करता था। प्लस देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि न्यूज में रहते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था करंट अफेयर्स को कितना भाव देना चाहिए, तो मेरा एकदम सिंपल कहना है, करंट अफेयर्स में जैसे अगर टर्म आता है, केनिया के पोर्ट का कुछ था, एल से नाम था, मैं अभी भूल भी गया, तो वो सारे क्वेश्चंस जब भी आते थे ना, तो मैं ये देखता था वो किस कंट्री में है, और अगर जैसे मुझे पता चल गया केनिया में है तो मैं फिर केनिया कंट्री को एक बार जाके फिर से देखता था, क्योंकि यार मुझे ये पता है कि केनिया अफ्रीका में है, लेकिन वो मतलब सेचिलिस से ऊपर है कि नीचे है कि पैरेलल में है, कितना पैरेलल में है, ये सब कुछ मैं देखता था, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है घुमा के, इक्वेटर उससे पास कर रहा है कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारा स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट क्योंकि स्टैटिक इतना बड़ा है कि पता नहीं रहता है कि कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के थ्रू मैपिंग पे जाओ, बोथ हिस्ट्री वाले मैपिंग, बोथ ज्योग्राफी वाले मैपिंग, एंड एक होता है प्लेसेस इन न्यूज, जो कि अभी से नहीं बहुत साल से चला आ रहा है, बहुत सारी कोचिंग निकालती है, तो प्लेसेस इन न्यूज का भी मैपिंग करो, तो वो करो, वो हेल्पफुल होगा काफी। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक लास्ट 1-2 क्वेश्चंस होंगे। जी जी, अभिजीत आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ हाँ, आवाज
आवाज है? हाँ जी हाँ हाँ, जी। क्या कह रहे हो? दोनों में हो रहा है, क्या है पुणे? तो यार देखो, एकदम सिंपल सा बात कह रहा हूँ कि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको कंसेप्ट चाहिए। अगर तुमको लग रहा है मार्क्स नहीं आ रहा है, तुम टेस्ट देना छोड़ दो, तुम बैठ के पहले इकोनॉमिक्स के चीजों को रिवाइज करो फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, ठीक है? जब 3-4 दिन रिवीजन कर लो, और सच में उस 3-4 दिन में जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो अपने नोट से, फिर उसके बाद इकोनॉमी के लगातार अगले 4-5 दिन तक में एक एक टेस्ट देना, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे करके। जो कहने का मतलब ये है ना कि देखो, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ऐसी चीजें हैं जिसपे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अगर वीक है तो कोशिश करो कि टेस्ट कम करके रिवाइज करो, ठीक है? क्योंकि टेस्ट तुमको हेल्प नहीं करता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है ना कि मैंने देखा है लोग 50 टेस्ट लगा रहे हैं और मैं 5 टेस्ट लगा के भी प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ, या 2 टेस्ट लगा के भी निकाल रहा हूँ। और ऐसा मेरे अटेम्प्ट में हुआ है, खास करके तब जब मैं इंटरव्यू का रिजल्ट आ रहा है और तुरंत प्रीलिम्स देना है मुझे। तो मेरा क्या कहना है कि कंसेप्ट ज्यादा मैटर करेगा एज कंपेयर टू टेस्ट इकोनॉमिक्स सब में। तो अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा वीक है, हम तुम्हारा वीकनेस लेवल बस इसके बेसिस पे नहीं जान पाएंगे, तो आई वुड जस्ट से कि जो तुम्हारे नोट्स है उसको अगले 4 दिन में रिवाइज कर लो, ठीक है? फिर कोई सर टेस्ट स्टार्ट करना। मतलब सर पीआई जब होता है तब हो जाता है, बट थोड़ा नहीं देखो, दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस तुम बहुत बार देख लिए रहते हो, तो कहीं ना कहीं तुमको आंसर याद भी हो जाता है। कहीं ना कहीं तुम लॉजिक लगाना बंद करके आंसर एक्सेप्ट करने लगते हो। तो व्हाट आई वुड ट्राई टू से इज, देखो बहुत बार ना बहुत सारी कोचिंग टेस्ट का क्वेश्चन जानबूझ के इतना हार्ड करती है, उतना पूछा नहीं जाता है। बट अगेन मेरा बस कंसर्न यही है कि तुम्हारा पॉलिटी इकोनॉमी इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हें अपने प्रिपरेशन पे ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर आ रहा है डाउट, जैसा कि तुम्हारे वे ऑफ कन्वेइंग से लग रहा है, तो फिर भाई रिवाइज करो एंड इतना ज्यादा सोचो मत इस पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। सिया, आप अनम्यूटेड हैं। सिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर माय डाउट इज जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन से इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट और एनी डॉक्यूमेंट विच इज ऑथेंटिक, तो उसके हमें फुल रीड करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और समरी इज वे बेटर देन दैट? देखो यार, अगेन फिर यहाँ पे आरओआई का बात आता है। मतलब उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो तुम्हारे पास समरी एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर तुमको लग रहा है कि समरी के बिना भी छूट गया, तो मैं एकदम साफ बात बताऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे को डाउनलोड करो, तुम अपलोड करो एआई टूल पे, कहो कि फॉर द फर्स्ट 20 पेजेस 10 क्वेश्चन बना दे, इन द नेक्स्ट 20 पेजेस फिर 10 क्वेश्चन बना दे। और मैं इस तरह से ही पढ़ा हूँ काफी, ठीक है? क्योंकि अगेन द आइडिया इज कि मेरे माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, तुमने ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा क्योंकि बहुत बार समरी में बहुत कुछ चीजें मिस हो जाती है, और इसी चीज का शायद आई गेस तुमको डाउट होगा कि कहीं मिस ना हो जाए। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा अपलोड करके, तो इतने ही प्रैक्टिस कर लूंगा ना कि सो डैट क्या कहते हैं, मेरे माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है, मुझे लास्ट में बोला गया एक जनरल पीस ऑफ एडवाइस देने, लेकिन मैं एक एडवाइस अभी दे देता हूँ। नो मैटर तुम्हारा प्रिपरेशन क्या कहते हैं किस लेवल का हो, लास्ट 10 डेज में तुमको फील ऐसा करना है कि मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है? मतलब तुम्हें ऐसे वो डाउट नहीं ज्यादा आना चाहिए माइंड में। मतलब टिल द लास्ट मोमेंट तुम एफर्ट पुट इन करो। बट यूपीएससी का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि इसी एम्बिट से आएगा। तो तुमको कहीं ना कहीं जाकर के वो कर लेना रहता है कि अब ज्यादा मैं इस पे सर्च नहीं करूं। मतलब ऐसे नहीं करूं कि सबके ऑफिशियल चीजों पे जा रहा हूं, सब पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मतलब अगेन आरओआई देखना कि 20 डेज में जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, लास्ट 20 डेज में पीवाईक्यू करो। Sir, I have some roughly around 2 years time of giving the final exam. I'm pursuing my graduation right now. So I have enrolled in some mentorship. तो उसमें अगर I give test थोड़ा means के लिए if I do, तो their evaluation I'm feeling at personal level is not that much good. तो क्या करें इसके? तो फिर कुछ और ट्राई करो, क्योंकि कंसिडरिंग कि तुम्हारे पास टाइम है किसी और चीजों को ट्राई आउट करने का भी। देखो सी क्या होता है ना, ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, इस पे मैं कमेंट ऐसे नहीं कर सकता हूँ विदाउट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। लेकिन द फैक्ट इज इन जनरल मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेनी अ टाइम्स यू विल टेक द हेल्प ऑफ सम कोचिंग, यू विल टेक द हेल्प ऑफ चीजें। कुछ कभी बहुत हेल्पफुल लगेगा, जैसे मुझे तो हेल्पफुल ही लगा था चीजें, लेकिन कभी तुम्हें रिग्रेट भी होगा कि यार समय बर्बाद हो रहा है, टाइम पे कॉपी चेक नहीं हो रहा है, या अच्छा
स्टैंडर्ड्स नहीं हो रहे हैं, जो भी हो। तो अगर ऐसा कुछ भी डाउट है मन पे तो अपने पढ़ाई पे फोकस करो एंड मीनवाइल सर्च करते रहो इससे अच्छा एवेन्यू कहाँ पे है, फिर उधर स्विच हो जाओ, ठीक है। बट द आइडिया इज कि तुम पॉन्डर ओवर नहीं कर सकते हो इस थॉट पे कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है हमारा प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं होता है, तो साथ साथ में प्रिपरेशन पे भी काम करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आई गेस हमारा टेलीग्राम लाइव का ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, हाँ। बट देर इज वन कैंडिडेट जिसने स्टार्ट से ही हैंड रेस कर रखा है, सो कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन? हाँ ठीक है। सो कुकी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ। कुकी यू आर अनम्यूटेड नाउ। कुकी आप अनम्यूटेड हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, नो वरीज सर। सो हम लोग ये लेट्स एंड दिस टेलीग्राम लाइव सेशन, बट बिफोर दैट कैन यू शेयर अस द दैट फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन टू क्लियर द एग्जाम? Okay, so like I have lot of advice, but if I have to say just a single piece of advice, I would say कि 40 days after prelims exam है, in these 40 days you will go through a range of emotions. There will be some days in which your preparation will be very good. There will be some days in which you will feel bad कि marks कम आ रहे हैं, पढ़ाई उतना नहीं हुआ है, या पढ़ा हूँ पता नहीं उसका इम्पोर्टेंस कितना है, पता नहीं उसमें से कुछ पूछा भी जाएगा कि नहीं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर फीलिंग, तुमको नेक्स्ट 40 डेज में एफर्ट डालना है, तुमको डाउट नहीं करना है अपने प्रोसेस पे, तुमको ज्यादा डेविएट नहीं करना है कि प्लान सडनली चेंज ही करते जा रहे हो। सो इन दीज 40 डेज यू हैव टू बी इंटेंस इन योर प्लानिंग, इन योर एग्जीक्यूशन, एंड यू हैव टू लव द प्रोसेस रादर देन फील बर्डन्ड बाय द प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स में ऐसे था कि मुझे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करूं। देखो सही बात है, वो सारा चीज का बैकग्राउंड में प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक इको कर रहा है वॉइस, म्यूट हो जाओ। हाँ, सो बेसिकली तुम्हें सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, rather than एक मोमेंट भी तुम्हारे मोमेंट में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि हाँ ठीक है प्रिपरेशन उतना नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको डाउट होता है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो सेलेक्टेड बंदे होते हैं ना, इंटरव्यू सेलेक्टेड अंडर 100 रैंक वाले जो फाइनल सेलेक्टेड बंदे होते हैं, उनका भी प्रीलिम में मतलब क्या कहते हैं नहीं क्वालिफाई करते हैं, अगर वो काम कंपोज होके रिलैक्स होके एग्जाम नहीं दी। ओके सर, थैंक यू सो मच। Let's end this Telegram live session. But before that, I just wanted to tell everyone कि बहुत सारे questions रह गए हैं, so we will share one doc and we will try to answer all those questions. Thank you so much, sir, for being with us, and we are ending this live session. Thank you so much, everyone. Thank you. Join Prayas AI Telegram for more Telegram lives with rank holders.